أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں آج میری پہلی کارنر میٹنگ میں بڑے جوش اور خروش کا اظہار فرمایا. الیکشن نام ہی جذبات کا ہے، جوش کا ہے. آج میں یہاں لیاری میں نیا نہیں، جس طرح لاڑکانہ میرا گھر ہے اس طرح کراچی میرا گھر ہے. ایک گھر لاڑکانہ میں ہے اور ایک گھر کراچی میں ہے اور یہ پورا سندھ ہمارا گھر ہے. میں تو اس نیت سے یہاں الیکشن لڑ رہا تھا کہ میرے بھائی محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب لیاری سے الیکشن لڑیں گے. لاڑکانہ میں بھی ان کے مد مقابل میں ہوں گا اور لیاری میں بھی ان کے مد مقابل میں ہوں گا. لیکن وہ لیاری سے تو بھاگ گئے ہیں، لیکن لاڑکانہ سے ان کو بھاگنے نہیں دیں گے اور لاڑکانہ میں بھی انشاءاللہ ان کے مد مقابل ایک حق کی جماعت ہے. انہوں نے سندھ کو تباہ کر دیا، لاڑکانہ کو تباہ کر دیا، نواب شاہ کو تباہ کر دیا، لیاری کو برباد کر دیا. 15 سال سے بھٹو صاحب کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں، جی اے بھٹو کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں، چہروں کو تبدیل کر کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سندھ کا عوام پوچھنا چاہتا ہے، کراچی کا عوام پوچھنا چاہتا ہے، لیاری کا عوام سوال کر رہا ہے کہ بھٹو صاحب تو زندہ ہے لیکن عوام کیوں مر رہی ہے؟ بھٹو صاحب تو زندہ ہے، لیاری کا عوام کیوں مر رہا ہے؟ بھٹو صاحب تو زندہ ہے، سندھ کا عوام کیوں مر رہا ہے؟ بھٹو صاحب تو زندہ ہے، لاڑکانہ کا عوام کیوں مر رہا ہے؟ بھٹو صاحب تو زندہ ہے، نواب شاہ کا عوام کیوں مر رہا ہے؟ بھٹو صاحب تو زندہ ہے، اسپتال میں علاج میسر کیوں نہیں؟ بھٹو صاحب تو زندہ ہے، روڈ، راستہ، تعمیر، ترقی، اسکول اور تعلیم کیوں نہیں ہے؟ بھٹو صاحب کے نام پر بے وقوف بنانا چھوڑ دو. بھٹو صاحب لیڈر تھے، ہم مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں. لیاری کے عوام نے، کراچی کے عوام نے، سندھ کی عوام نے بھٹو صاحب کا قرض اتار دیا ہے. اب لیاری کی عوام قرض اتارے گی تو لیاری کا قرض اتارے گی، کراچی کا قرض اتارے گی، سندھ کا قرض اتارے گی، سندھو دریا کا قرض اتارے گی، جزیروں کا قرض اتارے گی، وسیلوں کا قرض اتارے گی، اسکول اور اسپتال کا قرض اتارے گی. اب ہم بھٹو کے قرضی نہیں، اب ہم عوام کے مقروض ہیں اور ووٹ ڈالتے وقت ہم بھٹو صاحب کو مطمع نظر نہیں رکھیں گے. صرف اپنی گلی، اپنے روڈ، اپنے ٹرانسفارمر، اپنے بجلی اور اپنے گیس کو مطمع نظر نہیں رکھیں گے. ووٹ ایک ہوگا لیکن ہمارے مطمع نظر سندھ ہوگی، سندھ کی تعمیر ہوگی. ایک ووٹ انشاءاللہ پورے سندھ کی ترقی کا ضامن بنے گا. ان کے قرض اتر چکے ہیں، آؤ مل کر لاڑکانہ میں بھی ان کی ضمانتیں ضبط کریں اور لیاری میں بھی ان کی ضمانتیں ضبط کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. گرتے ہوئے دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو ناصر سومرو صاحب، آیا سومرو چاہے سومرو، آیا سومرو چاہے سومرو، آیا حق چاہے حق. آپ بھی شہیدوں کی بات کرتے ہیں،
आप भी लोगों को शहीदों के वास्ते देते हैं। मैं भी एक शहीद का बेटा हूं। मैंने भी अपने वालिद का जनाजा किसी जलसे से नहीं, किसी सियासी इज्तिमा से नहीं, 29 नवंबर 2014 को सक्कर की जामा मस्जिद में फजर की नमाज अदा करते हुए सजदे की हालत में गोलियों में छिलनी अपने वालिद का जनाजा उठाया था। सिंध की तारीख ने शहीद खालिद महमूद को सिंध का वफादार लिखा है। अगर शहीदों की बात करते हो तो फिर हम भी शहीदों के वारिस हैं। कराची में शहीदों के जनाजे हमने उठाए। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद का जनाजा, हजरत मौलाना यूसुफ बिन नूरी का जनाजा, हजरत मौलाना अहमदुर रहमान शहीद का जनाजा। अगर शहीदों की बात करते हो फिर आपसे ज्यादा शहीद हमने उठाए हैं। लियारी के अमन को तबाह किसने किया? आप सिर्फ लियारी के अमन की बात क्यों करते हो? आज एक डेटा के मुताबिक कंदकोट, जैकबाबाद, घोटकी के कच्चे में 1500 और 2000 से ज्यादा लोग इस वक्त भी डाकुओं के पास मगवी हैं। डाकुओं का राज है शिकारपुर में, डाकुओं का राज है जैकबाबाद में, डाकुओं का राज है घोटकी में। लियारी वालों, सिर्फ लियारी की बात न करो। लियारी वालों, सिर्फ लियारी की गली को मत में नजर रख के वोट न दो। जिन्होंने 15 साल सिंध से अमन छीना, लाड़काना शिकारपुर से अमन छीना, लियारी और कराची से अमन छीना, उनसे पूछो कि हमने तीर पे ठप्पे मारे। लियारी की वजह और लाड़काना की वजह से आप इख्तिदार में पहुंचे हो। बताओ कि 1500 से 2000 लोग डाकुओं के पास मगवी क्यों हैं? डाकुओं का राज क्यों है? पुलिस आपकी, कमिश्नर और डीसी आपके, वजीर और मुशीर आपके, फिर भी आप कहते हो कि हमने बड़ी हुकूमत की शर्म आनी चाहिए आपको। आप न बिजली दे सके, न गैस दे सके, न अमन दे सके। आपने अगर देखा हो तो 2 महीने कबल जमीयत उलमा इस्लाम सिंध ने खैरपुर से कराची तक हर एक जिले का दौरा किया। हमने सिंध अमन मार्च निकाला और हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में, हर रोड पर हमने अमन 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 की दाद और फरियाद करते हुए कराची पहुंचे। और इन 15 साल इख्तिदार के जो वाली और वालिस बने हुए थे उनसे हमने मुतालबा किया कि आप सिंध को अमन का गहवारा बनाओ, कराची को अमन का गहवारा बनाओ, लियारी को अमन का गहवारा बनाओ, वरना ये अवाम वोट की ताकत से आपकी जमानतें जब्त कर देंगे। बात करते हैं तीर की। माजरत के साथ मैं किसी जातियाती हमले पे नहीं जाता, ये हकाइक है। मैं किसी से नहीं डरता। मेरी मौत गोली में नहीं, मेरी मौत किसी बंदे के हाथ में नहीं। जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अगर शहादत की मौत मिली, रब्बे मोहम्मद की कसम वो हमारे लिए इज्जत और अजीमत का रास्ता होगा। न मैं सरदारी से डरता हूं, न सरदारी के चमचू से डरता हूं। तख्ते दार पे भी इंशाअल्लाह हक का कलमा कहते रहेंगे। आप तीर की बात करते हो कि तीर को वोट दो। तीर तो बर्बरियत की निशानी है भाई। यहां कोई बंदा तीर उठा के रास्ते से गुजरे, आप उसको अच्छा समझेंगे या बुरा? बताओ ना, बोलो भाई। भाई तीर लेके जा रहा है, पता नहीं किसके पेट में घुसड़ेगा, पता नहीं किसके ऊपर हमला करेगा। तीर तो वहशत की निशानी है, तीर तो दहशत की निशानी है, तीर तो बर्बरियत की निशानी है, तीर तो जुल्म की निशानी है। आपका निशान तीर है, मेरा निशान किताब है। आओ निशान का तकाबली मुआवजा करते हैं, कौन सा निशान बेहतर है। आपके हाथ में वो तीर है जो करबला की रेगजार धरती में यजीद के हाथ में था। करबला की रेगजार धरती पे यजीद के हाथ में तीर था। मेरे मुर्शिद इमाम हुसैन आली मकाम के हाथों में अल्लाह का कुरान किताब था। तुम्हारे हाथ में यजीद का निशान है, मेरे हाथ में इमाम हुसैन का निशान है। किताब इल्म का निशान है, किताब तामीर का निशान है, किताब तरक्की का निशान है,
किताब माशी खुशहाली का निशान है, किताब तामीर का निशान है, किताब हमारे नौजवान नस्ल की जमानत का निशान है, किताब असेंबली के अंदर कानून का निशान है, किताब सेनेट के अंदर आइन का निशान है, किताब मस्जिद और मदरसे, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर इल्म और अमल, बरकत का और अल्लाह के कलाम का निशान है। हमने किताब को चुना है, तुमने तीर को चुना है। फैसला अवाम पर छोड़ते हैं कि अवाम इंतखाबी निशान के लिए 8 फरवरी को जुल्म और बर्बरियत के निशान तीर को मुंतखब करता है या इल्म और तामीर के निशान किताब को मुंतखब करता है। फैसला आप पर है, फैसला अवाम पर है। इन्होंने, मैं दरखास्त करूंगा लियारी के अवाम को, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम इन बडेरों की तरह नहीं है कि महल्लात में बैठ जाए, हम मस्जिद में मिलने वाले बंदे हैं। कभी मौलवी ने ईद के दिन भी नमाज की छुट्टी नहीं की, बारिश के दिन भी कभी यह नहीं हुआ कि मस्जिद के दरवाजे पे ताला हो कि मौलवी साहब छुट्टी पे गया। न ईद के दिन छुट्टी, न बारिश के दिन छुट्टी, न हड़ताल के दिन छुट्टी। क्यों? फजर पे भी मौलवी मौजूद, इशा पे भी मौलवी मौजूद। कभी भी ये नहीं हुआ होगा कि आप मस्जिद में गए हो और इमाम साहब ना हो और आपने अपनी नमाज अदा की हो। क्यों? कि आपने हमें अपनी जिम्मेदारी दी है, इमामत की जिम्मेदारी अवाम ने उलमा के हवाले की। इमाम ने कभी कोताही नहीं की। आपने क़यादत के लिए दुनियादारों को क्यों चुना है? आपने क़यादत के लिए बडेरों, सरदारों, खानों, नवाबों को क्यों चुना है? आपने क़यादत के लिए जालिमों को क्यों चुना है? आपने क़यादत के लिए अवाम के हक, वोट के हक पर, अवाम के हक पर डाका डालने वाले को क्यों चुना है? जिस तरह मस्जिद के मुसल्ले पर इमामत का हक आलिम के पास है, रब्बे मोहम्मद की कसम, इस तरह इस उम्मत की क़यादत का हक भी आलिम के पास है। क्योंकि आलिम न सरदारी का वारिस, न किसी और सियासी जमात का वारिस, आलिम नबी का वारिस है। नबी सिर्फ इमाम नहीं थे, नबी इमाम भी थे, कायद भी थे, रहबर भी थे, रहनुमा भी थे और हुक्मरान भी थे। आइए अल उलमा वरसतुल अंबिया को सामने रखते हुए, किताब को सामने रखते हुए उलमा के इन नुमाइंदों को मुंतखब करें जो आपके तकदीर को तब्दील कर सके, कराची और लियारी की तामीर के लिए किरदार अदा कर सके। आपका वोट एक होगा। मैं लियारी वालों आपसे दरखास्त करता हूं, वोट डालते वक्त ये जरूर जहन में रखना कि वोट एक है, लेकिन ये पूरे सिंध की नुमाइंदगी कर रहा है। वोट एक है, ये सिर्फ मेरी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, एक घर की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। हाँ, आप अकेले हैं, वोट भी अकेला है, लेकिन इस वोट के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि ये आपका एक वोट पूरे सिंध की तकदीर को तब्दील कर सकता है, तामीर भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। अगर आपने किसी अच्छे उम्मीदवार को वोट दिया जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अवाम के हकूक के हासिलात की जंग लड़ सके, असेंबली के अंदर आपकी आवाज बन सके, अगर उसको वोट दिया तो रब्बे मोहम्मद की कसम आपका एक वोट आपके लिए क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बन सकता है। अगर किसी जालिम को दिया, अवाम के दुश्मन को दिया, ऐसे बंदे को दिया, ऐसे उम्मीदवार को दिया जिसने असेंबली में जाकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला, आपकी आवाज नहीं बना, आपकी तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा नहीं किया और इस तामीर और तरक्की के हल्के के पैसों को उसने अपने बाप दादा की जागीर समझकर हजम और हड़प कर दिया, तो अल्लाह की कसम आपका एक वोट आपके लिए भी उसी तरह जुर्म बनेगा, गुनाह का जरिया बनेगा जिस तरह उसके लिए बनेगा। क्योंकि वोट आप दे रहे हैं, ताकत आप दे रहे हैं, आप इख्तिदार की राह उनको दिखा रहे हैं। एक वोट है, एक वोट के जरिए लियारी को तब्दील करो। एक वोट है, वोट के जरिए कराची को तब्दील करो। एक वोट है, वोट के जरिए सिंध को तब्दील करो। मेरी जंग इन 15 साल हुक्मरानों के खिलाफ है, लियारी को बर्बाद करने वालों के खिलाफ है, कराची को तबाह करने वालों के खिलाफ है, सिंध को तबाह करने वालों के खिलाफ है, भट्टो साहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के खिलाफ है। आइए मिलकर इल्म, तामीर, तरक्की की निशानी किताब पर मोहर लगाइए। आपसे वचन करता हूं, एक मरतबा हमारे ऊपर एतमाद करें, जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर एतमाद करें। अगर हम आवाम आपकी खिदमत न कर सके, मैं इस भरे मजमे में कह रहा हूं, वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही हैं, अगर हम आपकी खिदमत न कर सके, लियारी के लिए किरदार अदा न कर सके, आपकी तामीर और तरक्की के लिए आवाज बुलंद न कर सके, तो अल्लाह की कसम फिर कभी आपके पास वोट के लिए नहीं आएंगे, आपकी चाय पीने आएंगे, वोट के लिए नहीं आएंगे। हाँ, फिर आप हमें ढूंढते रहेंगे, हमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्यों कि हमने सरकारी खजाने को, अवाम के पैसे को अपने बाप दादा की जागीर नहीं समझी। ये अमानत है, वोट भी अमानत है, पैसा भी अमानत है। अमानत अमानतदार तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो वोट की अमानत हो, चाहे वो तामीर और तरक्की की अमानत हो। इंशाअल्लाह मिलकर किताब 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 की जीत का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। भाई किताब को वोट देंगे। मैंने पहले कहा तीर यजीद की निशानी है। करबला की रेगजार धरती पर तीर किसके हाथ में था? बोलो ना भाई, किसके हाथ में था? और मुर्शिद इमाम हुसैन अली मकाम के हाथ में क्या था? क्या था भाई? बताओ भाई, क्या? किताब। तीर वहशत, दहशत, बर्बरियत, जुल्म की निशानी, और किताब इल्म की निशानी। किताब, एक बच्चा यहां से तीर हाथ में उठा के ले जाए और दूसरा बस्ता पहनकर किताबें डाल के, बुक डाल के जाए, आप किसको अच्छा समझोगे भाई? बताओ। हाँ, तो फिर किताब पर मोहर लगाओ, घर घर आवाज पहुंचाओ। इंशाअल्लाह हम लियारी के लिए, कराची के लिए, सिंध के लिए तामीर का जरिया बनेंगे, तरक्की का जरिया बनेंगे। और हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, और इन इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह मुल्क को बेहतर बनाएंगे, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएंगे। और इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह उलमा ने इमामत का हक अदा किया है, इस तरह उलमा उम्मत की क़ियादत का हक अदा